especially women's, they are very much influenced with that Korean skin and Korean products. So is it real? Is this works on Indian skin? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो कोरियन प्रोडक्ट है तो वो इंडियन स्किन पे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। आपकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो आपके चेहरे पे, वो आपके बालों पे, वो आपके ओवरऑल प्रेजेंस में दिखेगी। इंडियन वुमेन का पर्सनल केयर रूटीन जो है दैट इज वेरी सुपरफिशियल कि लाइक मॉइस्चर लगा लिया यहाँ हो गया, यहाँ सनस्क्रीन लगा लिया यहाँ हो गया। बट मेकिंग योर हेयर केयर ब्रांड को एक जनरल वेलनेस ब्रांड बनाना वो कितना टफ होता है? इट इज वेरी टफ। अगर आप जो सनस्क्रीन की बात कर रहे हो वो तो अब 1-2 साल में थोड़ा डिफरेंस आया दैट मेल्स एंड फीमेल्स हैव स्टार्टेड पुटिंग सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस, but it is very tough. I'll tell you why, because since Neha, I'm also from healthcare, so I understand, and especially women wellness category में trust build करना is really tough. और that is same with healthcare also. So क्या लगता है, क्या चीज है जो कस्टमर को आपके ब्रांड से पहली बार कनेक्ट करती है और क्या चीजें हैं जो उसको वापस अगेन एंड अगेन वापस लेके आती है? So I would say transparency and relatability. We are very transparent with what all ingredients we are using in our product, and efficacy products की इतनी अच्छी है जब लोग उसे regularly use कर रहे हैं, they are relating with what content we are putting on social media and trying to say that this will do this to you. So yes, transparency and relatability is something that we are going with. Second, our motto is that feel confident in your own skin. What I have discussed initially also. It is better to understand. It is high time now that we should come out of those filters what we use and we should embrace what we are. We should embrace our skin. We should embrace our hair. भगवान ने ऐसा ही बना के हमें भेजा है. What best we can do is we should protect it. We should not try to change it. So this is what we try to tell people. This is what I think people are relating now with our brand. And they are understanding कि अपने आप को बदलना जरूरी नहीं है. Just be the way you are. And BioValley products are there to protect your skin. Don't you feel कि आजकल सोशल मीडिया ने गलत benchmarks और expectations set किए हुए हैं? So regarding beauty, I'll say I think ये थे starting से ही. ऐसा नहीं है कि ये अभी आए हैं, बस सोशल मीडिया की वजह से ये आपको बहुत एविडेंटली हर रोज दिख रहे हैं. So I think social media is divided now in 2 parts. Where one is where people are trying to aware and educate people, this is not something you should go for. But on the other hand, there is a part where people feel, if you have money, just put in and get what you want. But people are not understanding that they are torturing themselves by doing it. पैसा है, आप ट्रिप करिए, आप बाहर जाइए, एंजॉय करिए, अपने विटामिन्स पे ध्यान दीजिए, अपनी जिम का कोई और बेटर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए rather than injecting things on your face and hair. Yeah. So yeah, social media plays a very important role in this, but पहले भी था, it just अब evidently बाहर दिख रहा है. But as you said कि लोगों को एक holistic approach लेनी चाहिए when it comes to your wellness, whether it is your physical or mental wellness. But don't you feel people mostly look for short-term fixes? They are, and I think वो encourage भी brands ने ही किया है, where they show it like कि आप ये करोगे ये हो जाएगा. You see a lot of ads and reels coming. They don't tell कि अच्छा ये हमारा product है, आप यूज करो for 3 months consistently आपको यूज करना है, एंड लेटर आफ्टर 3 months आपको हल्का सा चेंज दिखेगा, क्योंकि उनको जल्दी सेल चाहिए. दे विल बी लाइक here's the product, cut and here you will get the result. This is not how the product works, but दिखाया वही जा रहा है एंड लोग मान रहे हैं एंड लोग खरीद रहे हैं एंड लेटर वो फिर डब्बे रखे रहते हैं साइड पे, फिर कोई और ब्रांड आ जाता है. इम्पल्सिव बाइंग व्हाट इट इज. सो नेहा, आप एक चीफ बिजनेस ऑफिसर हो, आप ब्रांड का फेस हो, आप विमेन हो इस तरीके की डिमांडिंग इंडस्ट्री में. सो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में खुद की वेलनेस का ध्यान रखना वो आप कैसे करते हो?
So और क्यों जरूरी है करना? yeah, so I'll just tell one incident. Initially, when I started the brand, अच्छा एक और ये myth है, आज ही मेरी किसी friend ने भी share किया था, and I totally relate with it. That people think कि आजकल जो हम देखते हैं, 5 महीने में ब्रांड बन गया, 8 months में ब्रांड बन गया, और वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल देता है that you start feeling shit, मैं कहीं पीछे हूँ, मैं वहां नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए. तो initially when I started Bio Valley, I think 6-7 महीने हुए थे, and I started thinking this is not the way I thought of it's happening, and somewhere I started, taking it on my sleep. I was not able to sleep. Next day, khatkar, you're going office, aapko samajh nahi aa raha hai. But later, after a week, I understood that it is coming on my body now. So वो पैसा किस काम का कि अगर आप उसको नेक्स्ट डे या जिस टाइम वो मोमेंट आएगा आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे. तो लेटर आई अंडरस्टूड थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश होना गलत नहीं है. यू टेक योर ओन टाइम, मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल. और एक और चीज है, लोग सोचते हैं अच्छा लीडरशिप रोल पे लाइफ बहुत इजी होगी, ये बता दिया, ये कर दिया, एंड थिंग्स मस्ट बी सॉर्टेड. बट सबसे ज्यादा जो दिमाग पे प्रेशर आता है वो एक लीडर के दिमाग पर ही आता है. बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड आई हैव टू गिव माई सेल्फ my own time. जब भी मुझे लगता है now pressure is building up, I pick up my laptop, I go somewhere, I don't come for work 2 days. I don't say that मैं वो 2 दिन काम नहीं करती हूँ, but I try to understand what is going right, what is going wrong. तो pressure है, कोशिश कर रही हूँ, still trying. बिल्कुल एकदम वहाँ नहीं पहुँच गई हूँ कि ठीक है आप मुझसे समझ लो और ये कर लो. But yes, I'm trying, and maybe in coming months or so I'll be in a better space. But don't you feel कि हम सब ने मिलके ही इस हासिल को, स्ट्रगल को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि we start ignoring our own health? That's true. Actually ये प्रॉब्लम हम लोगों की ही है. So now people have started comparing themselves. So let's suppose आपका एक अपना ब्रांड है, राइट? आपके ब्रांड की अपनी एक जर्नी होगी, मेरे ब्रांड की अपनी एक जर्नी है. अब क्या हो गया, 5 ब्रांड्स मार्केट में हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बता दी. अब क्या हो रहा है, हम लोग उससे अपने ब्रांड को रिलेट करने में लग रहा है. एंड वन मोर थिंग इज देयर, दिस ट्रेंड फैक्टर व्हाट हैज बीन देयर फॉर लॉन्ग ऑन सोशल मीडिया, कि हम ट्रेंड सेटर हो गए, फिर वो ट्रेंड फॉलोअर हो गए, फिर जो लास्ट में आए उनका कुछ नहीं हुआ. तो वो जो सेंस ऑफ कंपैरिजन है वो हम ही लोगों से आया है. बट नाउ आई वुड अर्ज एंड आई वुड आस्क पीपल लाइक अस कि इन कमिंग टाइम अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेट्स नॉट पुट दैट प्रेशर ऑन आवर कमिंग जनरेशन. हम अपने वो जो 5-10 साल का काम करेंगे, वी हैव टू टेल देम द नेगेटिव फर्स्ट, देन टेलिंग द पॉजिटिव्स. अब जैसे एक लीडर है, आई थिंक उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने डाला कि बस कूद जाओ, रास्ता अपने आप बच जाएगा. Now this generation is taking it seriously. They are quitting the jobs and they are starting the business, and 3 महीने बाद they are again doing the job. अब पॉइंट ये है उनका, वो छोड़कर बिजनेस शुरू करना was not the wrong decision, but the time was not the correct. तो जब वो बस कूद जाओ वाली चीज नहीं, मत कूदो. आप पहले समझो कि क्या है क्या नहीं है, आप किस लेवल पे हो. बिजनेस चलाना इज नॉट अ इजी थिंग. पैसे के साथ साथ देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर व्हाट यू फील एवरी डे, एंड यू नीड टू गेट अप एंड यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क अगेन. सो जब आप उस चीज के लिए रेडी हो, प्लीज तब कूदो, फिर रास्ते अपने आप बनने लग जाएंगे. आई थिंक लोगों को ये समझना पड़ेगा, इफ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, तो जरूरी नहीं है कि आप वो हासिल करो एंड यू नीड टू इग्नोर योर स्लीप, योर डाइट, योर ऑल दोस थिंग्स. आप ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ भी इन चीजों को कर सकते हो, बिकॉज आई बिलीव अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे? If you're not well, how you would be able to take care of the brand? That's what I said ना, वो पैसा कमाना, वो लेवल पे पहुंचना किस काम का, जब नेक्स्ट डे एक्चुअली सक्सेस आएगी आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे, पैर कांप रहे होंगे, क्योंकि आपने तो कुछ और ही कर चुके हो आप लाइफ में. तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, आई एम श्योर ये अभी जो आप मुझे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया होगा. एक ऐसा इंसिडेंस बताइए जहाँ पे आपने भी कभी अपनी हेल्थ को इग्नोर किया हो
बट बाद में जाके आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं यार ये गलत था, या आई शुड हैव डन दिस? So I don't have a big moment to share, but yes, every day it was happening that I'm skipping my lunch, just going for the meetings or whatever, trying to, get my day as productive I can make it. तो उसमें आप लंच स्किप कर रहे हो, डिनर का कोई टाइम नहीं है, मॉर्निंग में आप आ रहे हो तो यू हैविंग योर ड्रिंक एंड जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड फूड, एंड बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा होता है थोड़ा कि शायद आई गेट लीन इन डूइंग ऑल ऑफ दिस. No, that's not the truth. And later I got a lot of stomach issues. Went to the doctor. Doctor told me कि कुछ बड़ा नहीं है, but जो ये आप basic चीज miss out कर रहे हो, which is having food proper in time, have your probiotics, have your vitamins, keep yourself hydrated. Again, वही simple चीजें हैं. तो मेरे साथ इतना कुछ बड़ा moment नहीं हुआ है, but I feel इस बीच में I have understood that कि अपना ध्यान रखना भी equally important है with running a business. Right. अब like your hair, skin, stress, sleep, hormones, everything is connected. तो आपको ऐसा फील होता है कि कभी भी जब वर्कलोड बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो एक start showing on your skin, on your hair. Absolutely. तो आप कैसे डील करती हैं? अगर आपको ऐसा फील, आई एम श्योर हुआ होगा. I think वो रेगुलरली होता है. अभी इट्स नॉट अबाउट योर डे टू डे वर्क ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके चेहरे पे, वो आपके बालों पे, वो आपके ओवरऑल प्रेजेंस में दिखेगी. योर हेयर्स विल स्टार्ट फॉलिंग, योर ग्लो विल बी गॉन, मे बी यू स्टार्ट गेटिंग एक्ने. लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन नोज, अगर आपके स्टमक इश्यूज हैं, आपको इतने एरिया में एक्ने आना शुरू हो जाएगा. हमें लगता है यार अच्छा वो होगा, वहां चले गए थे, लास्ट नाइट वी हैड ड्रिंक्स अ लॉट, मे बी उसका आ रहा है. नो, दैट इज समथिंग जो आपकी बॉडी में बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है और वो आपको दिखता है. सेकेंड, एक नेगेटिव पॉइंट और है बीइंग हियर, बीइंग इन दिस कंट्री, दैट इट्स नॉट अबाउट योर डे टू डे थिंग. व्हेन यू गो आउट, यू गेट लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑल ओवर यू. सो जहाँ और जगह पे आपको बेसिक ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको प्लस एड ऑन अपनी डाइट में और मे बी अपने जो भी आपका पूरा रेगुलर डे है उसमें चीजें ऐड करनी पड़ेंगी टू गेट get sorted with what outside things are happening. So being into this brand, building this brand, तो ये आपको realize हुआ होगा with the period of time, because I'm sure आपके एज के आज जो भी लोग हैं सब हसल में लगे हुए हैं. They are building their careers or maybe they are building their brands. तो जैसे हमने glorify किया हुआ इस तरीके के हसल में, I'm sure लोग इस तरीके से ignore करते होंगे, और आपको भी धीरे धीरे realize हुई होंगी ये चीजें. Of course, वो तो आप जैसे टाइम टू टाइम जब आपको लगता है कि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप जाते हो डॉक्टर से बात करते हो, आपको पता चलता है कि चीजें चल रही हैं. लेटर यू रियलाइज एंड यू वर्क ऑन इट. बट हमारी कंट्री में थोड़ा प्रॉब्लम तो ये है, डॉक्टर के पास आदमी तब जाता है जब एक्सट्रीम हो जाता है. ये नहीं है कि बीच में कुछ अगर अच्छा. वन मोर थिंग इज देयर. सो ये हमेशा करा है. आप रील्स देख रहे हो, आपको 5 रील्स दिखी है, उसमें से 2 जो नहीं समझनी थी वो हमने समझ ली. बट अगर 3 कोई रील्स आ रही है जिसमें वो बता रहे कि सर आप ये अपने वेलनेस के लिए ये 3 प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में डालो, वो हम नहीं डालेंगे. उसमें हो जाएगा कि अच्छा देयर इज दिस प्राइस गेम इज ऑल्सो रनिंग अ लॉट. इफ यू सी, अच्छा ये 300 रुपए का प्रोडक्ट है, ये खरीद लेता हूँ, नहीं चला तो इतना वो नहीं लगेगा, 1000 वाला आई विल नॉट बाय. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप वो ब्रांड आपको प्रॉपर्ली समझा रहा है कि सी these are the things what we have and it will help you in this way, go and try that product. अगर किसी चीज के साइड इफेक्ट नहीं है और वो प्रोडक्ट आपकी लाइफस्टाइल में एक एड ऑन दे रहा है, just go and try it. What is more important than your health? अगर कोई women अगर wellness या personal care brand में कुछ build कर रहे हैं, तो आप उनको क्या suggest करना चाहेंगे? Only thing, don't go with trends, build trust for your consumer. And दूसरा, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या समझाते हैं, जो मैंने 2 साल, मेरी बहुत छोटी जर्नी रही है, बट आई वुड से
मार्केट रिसर्च करो, बट उतना करो कि थोड़ा एक मॉडल समझ में आ जाए कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. बट अगर मार्केट रिसर्च करिए और दूसरे ब्रांड्स का जो मॉडल रहा है, अगर वो टोटली आप इम्प्लीमेंट अपने ब्रांड पे करने की कोशिश करोगे, यू विल रीच टू अ फेलियर. बिकॉज आपका ब्रांड आपकी खुद की जर्नी है. ट्रेंड फॉलो करने की बजाय ट्रेंड बनने की कोशिश करो. एंड सबसे ज्यादा मार्केट रिसर्च से ज्यादा आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए, अगर आपने वो क्रैक कर लिया, देन आपको ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता. आई एम ऑल्सो इन टू दिस जर्नी ओनली. आई हैव नॉट बीन टू दैट पॉइंट कि मैं बोलूँ कि ये मैंने किया था और वो क्या है. बट what I am trying to do is कि मुझे मेरे कंज्यूमर्स से कनेक्ट करना है, मेरे कंज्यूमर की जो नीड है और जो उसको पता भी नहीं है कि उसको जरूरत है, मैं वो उसके लिए लाने की कोशिश करूंगी, rather than going कि उस ब्रांड ने वो किया था तो मैं वो कर लेती हूँ, तो शायद उसका एक मार्केट चंक मैं ले पाऊँ. So just build the trust, don't go with trends. Great insight. I think along with building the brand, you need to take care of your own health as well. Correct. Right? So अगर लास्ट में आपकी करंट सेल्फ अपने 25 साल वाली नेहा को अगर कुछ सजेशन देना चाहती है रिगार्डिंग हेल्थ, व्हाट इट शुड बी? I would tell her, don't be impatient. You know, just consistently keep on doing things, keeping your life intact. करियर को उतना सर पे मत लेने दो कि आप अपना ख्याल रखना भूल जाओ. So be impatient, but in a right manner. Right. So thank you so much, Neha. I think today's conversation was wonderful, and जो भी insights आपने दी, this is really gonna help women, especially who are building a brand, who are into business. Or we have also discussed why your health, why your own health is important while doing all this. I'm sure this is gonna help a lot of people, and I request हमारे women audience के साथ कि आज का episode जरूर सुने. Because I think जो insights नेहा ने दी हैं वो उनके real experience से आती है. It's not just ज्ञानबाजी. तो I think आपको बहुत benefit करने वाला है. So thank you once again for being on the show, and I hope and I wish you all the very best कि जल्दी आपके brands को हम एक अच्छी height पे देखें. So your brand and your career will flourish a lot, I think. Thank you so much, Amit. And I didn't felt for a 1 second that it was something artificial going. The conversation was so organic कि maybe आज तक जो मैं सोच रही थी वो उतना words में नहीं डाला होगा जो आज we had this in this conversation. So thank you so much. Thanks for calling. तो ये थी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन. नेहा ने जो शेयर किया वो सिर्फ एक सीबीओ की स्टोरी नहीं है, ये उस हर एक वुमेन की स्टोरी है जो अपने आप को लास्ट में रखती है और बाकी सब चीजों को पहले. और आज का सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए है कि सेहत कोई रिवॉर्ड नहीं है जो काम खत्म होने के बाद मिलेगा. एक ऐसा डिसीजन है जो आपको आज लेना है. अगर आज की इस कॉन्वर्सेशन ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पे मजबूर किया हो तो अपने ऐसे एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसको ये सुनना चाहिए. एपिसोड को लाइक करें और ऐसी यूजफुल कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही अच्छे गेस्ट हम यहाँ पे ला पाएंगे. तो सेहत अब टॉक्स के साथ बने रहिए, क्योंकि योर हेल्थ डिजर्व्स क्लैरिटी. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर.